Hello students, this is our second lecture of the residential status of the SSC unit number 2 of the taxation. As we know that in earlier lecture we studied the residential status of an individual. Now we are going to study the residential status of an SSC other than individual. So which kind of the other than individual SSC can be covered? It will cover HUF, firm and other association of the person, companies or every other person including artificial judicial person. So one by one we are going to study that. First, HUF, that a Hindu divided family, the residential status of the Hindu undivided family when the HUF is controlled or managed in India. If the HUF control and manage in India, that is known as HUF has a residential status. And as we all know that HUF run by the Karta, the head of the family run the business, that is a Karta, and his status should be clarified, that is a resident or ordinary resident or resident but not ordinary resident. So in the HUF you have to mention the Karta's residential status also. When HUF is not considered the non-resident, when the HUF not wholly or wholly situated outside India, that is known as a non-resident of HUF residential status. Then firm and other association, the condition for the resident and non-resident are same as the HUF. जैसे ही HUF में हम कंसिडर करते हैं कि अगर वो बिजनेस या फर्म है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो wholly और partly situated in India, then it known as a residential of the India. But it is not controlled and managed outside India, not in India, that is a non-resident, simply in the companies. A company is a resident of India on the basis of two situations. That is, first, it must be an Indian company, and second, the effective control and management of it situated wholly in India, not only the partly or wholly, but wholly situated in India and controlled and managed by Indian only. Then and only then it will consider the residential companies. Otherwise it will treated as a non-resident of India of any company. And other person, that is every other person including artificial judicial person, is the resident in India if any proportion of the control and manage of its affair in India, then it's resident in India, and when it is wholly outside India, that is a non-resident. What do you mean by the control and manage? Control and manage means के जो भी वो हो रहा है, जो भी वो बिजनेस चला रहा है, HUF है या जो कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, उसका मैनेजमेंट अगर इंडिया में से हो रहा है, चाहे वो अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट मेन उसका हेड ऑफिस है, जो कंट्रोल पॉइंट है वो इंडिया में होगा तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा. वरना अगर वो आउटसाइड इंडिया होगा तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा. समझ में आया? नाउ हम इस यूनिट नंबर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हमने किस वजह से रेसिडेंशियल स्टेटस हमने फाइंड किया है. दैट इज़ अ इंडेंस ऑफ द टैक्स. कौन सी इनकम किसको टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, उसके लिए ही हमने ये रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया है. तो हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टैक्सेबल इनकम होगी जो कोई भी इंडिविजुअल को या कोई भी अदर देन इंडिविजुअल को पे करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस. सो रेसिडेंशियल स्टेटस या तो रेसिडेंट और एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या तो NRI होगा. तो ये तीन सिचुएशन में कौन सा इंडिविजुअल कौन सी सिचुएशन में आएगा और किन इनकम पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है. तो दैट इज़ द कोर एंड द मेन पार्ट व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी. तो ये इनकम जो कोई भी इंडिविजुअल ले रहा है
वो किसके हिसाब से डिसाइड होगी, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड होगी। तो कौन सी इनकम उसको टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम उससे टैक्सेबल नहीं होगी, वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स से पता चलेगा। समझ में आया? हम आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो उस किन को टैक्स पे करना पड़ेगा या किसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये टेबल है जो आपको याद रखना है, इसके हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इनकम स्टेटस है इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, दैट इज, एंड देन 3 स्टेटस ऑफ द रेसिडेंशियल, रेसिडेंट बट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड द नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज NRI। अब देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम है वो किसको टैक्सेबल होगी। तो फर्स्ट हम बाइफिकेट करना पड़ेगा, कोई भी स्टेटस होगा या कोई भी इनकम होगी, फर्स्ट उससे हम क्लैरिफाई करेंगे वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम? इफ़ यू आर रिसीविंग एनी इनकम इट इज़ अक्रू अराइज रिसीव इन इंडिया, आपको जो भी इनकम मिल रही है वो इनकम आपको रिसीव, अक्रू और अराइज, कोई भी तीनों में से अक्रू, अराइज और रिसीव इन इंडिया हो रही है तो उसे हम इंडियन इनकम कहेंगे। समझ में आया? जो भी इंडियन इनकम होगी जो अक्रू, अराइज इन इंडिया होगी और रिसीव्ड इन इंडिया होगी तो उसे हम इंडियन इनकम कहते हैं। सपोज करो कि आप कोई NRI हो, आप आउटसाइड ही रहते हो बट आपकी प्रॉपर्टी और आपकी FDs वगैरह इंडिया की बैंक में है और उस बैंक में आपका जो भी पैसा पड़ा है उस पर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, बट वो रिसीव कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, ठीक है? तो वो इंडियन इनकम हुई। भले ही आप कभी इंडिया में नहीं आए हो, आप NRI हो, आप कभी भी इंडिया में नहीं आ रहे हो, बट आपका पैसा इंडियन इकोनॉमी में है, इंडियन बैंक में है और आप इंडिया में इनकम रिसीव कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, ठीक है? तो वो इंडियन इनकम होगी। तो कोई भी ऐसी इनकम है जो आप इंडियन थ्रू इन इंडिया बेसिकली पेड बाय द इंडियन कंपनी और एनीथिंग रिलेटेड विद द इंडिया, तो उसे हम इंडियन इनकम कहेंगे। फॉरेन इनकम क्या हुई? जो इन अक्रू, अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दैट मीन्स अराइज भी वहाँ हो रही है, अक्रू भी वहाँ हो रही है और आप रिसीव भी आउटसाइड इंडिया ही कर रहे हो, ठीक है? वो इंडिया से रिलेटेड नहीं है तो उसे फॉरेन इनकम कहते हैं। समझ में आया? इंडियन इनकम कैसे कहते हैं? अक्रू, अराइज रिसीव्ड इन इंडिया, दैट इज नोन एज इंडियन इनकम। अक्रू, अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दैट इज नोन एज अ फॉरेन इनकम। अगर इंडियन इनकम होगी तो कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस हो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इट इज़ अ टैक्सेबल टू ईच एंड एवरी असेसी, आइदर यू आर रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और NRI। इंडियन इनकम पे सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। इंडियन इनकम पे सबको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि आप इंडिया में से अर्न कर रहे हो, इंडियन की इकोनॉमी में से अर्न कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे आप NRI हो या ना हो। समझ में आया? अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की। अगर आप फॉरेन इनकम किसे कहते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिया में रह रहा हूँ पर मैंने कहीं फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अगर फॉरेन में से कुछ इनकम मुझे अर्न हो रही है तो उसे हम फॉरेन इनकम कहते हैं। अक्रू और अराइज और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दैट इज़ नोन एज द फॉरेन इनकम। बट मैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, तो मुझे टैक्सेबल होगा। मैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ तो मुझे टैक्सेबल होगा। अगर मैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ तो मुझे टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ तो मुझे फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। एक ही कंडीशन में टैक्सेबल होगी। कौन सी कंडीशन? दैट इज़ यू आर रिसीविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस, यू आर रिसीविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। अगर कोई बिजनेस और मैनेजमेंट है जो इंडिया में कंट्रोल हो रहा है और आपको
कोई भी इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रही है, दैट मीन्स फॉरेन इनकम है, तो भी आपको टैक्सेबल होगी। इन किन केस में? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। समझ में आया? और फॉरेन इनकम पे एनआरआई को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फॉरेन इनकम पे एनआरआई टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और फॉरेन इनकम अर्न कर रहा है, तो हमें क्यों टैक्स पे करें? इंडिया को क्यों टैक्स पे करें? समझ में आया? कोई एक व्यक्ति है जो अमेरिका में रहता है, कभी इंडिया आया ही नहीं, वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या तो फिर थोड़े दिनों के लिए घूमने आया है, तो वो अपनी इनकम पे यहाँ पे इंडिया में तो टैक्स पे करेगा नहीं। तो एनआरआई फॉरेन इनकम पे कोई भी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगी। फॉरेन इनकम पे सिर्फ रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही टैक्स पे करेगा, क्योंकि वो इंडिया में रह रहा है, और ये एक ही कंडीशन में पे करेगा, चाहे वो बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया होगा तो ही वो टैक्स पे करेगा। फिर से बता देती हूँ, इंडियन इनकम होगी तो सबको टैक्स पे करना पड़ेगा, और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो भी उसको इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम, दोनों पे टैक्स पे करना पड़ेगा। एनआरआई होगा और फॉरेन इनकम होगी तो उसे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और ये कंडीशन आपको याद रखनी है। और एक और एग्जांपल है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के अगले कई सालों में से जो आप प्रॉफिट अर्न कर चुके हो, वो आपको रेमिट करके इंडिया में लाना है। रेमिट करके अगर आप इंडिया में लाते हो तो भी किसी को भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप ट्रांसफ़र कर रहे हो मनी, सिर्फ आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर के पहले का ईयर का इनकम है। तो जब भी इनकम अक्रू अराइज और रिसीव होती है, अक्रू होती है, तभी उस पर हम टैक्स पे कर देते हैं। जब आप सिर्फ ट्रांसफ़र करते हो सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, तो उसको आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने कोई भी इनकम रिसीव की आउटसाइड इंडिया, 10,000 रुपीज़ इन 2008 और 2009, अब मैं वो इनकम वापस अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर रही हूँ इन द ईयर 2019 और 20। सो जस्ट आई एम ट्रांसफरिंग द इनकम, बट एट दैट टाइम इन द 2008 और 9 आई हैव पेड a tax on it. So now no need to pay the tax in 2019 or 20. Understood? अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे टैक्स पे करते हैं। तो पहले तो आपको कोई भी स्टेटमेंट आएगा, पहले तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम। ये जस्टिफाई करने के बाद आप ये तीनों में से कौन सी कैटेगरी के इंडिविजुअल का आप टैक्सेशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से हम टैक्स पे करेंगे। जैसे ही हम इलस्ट्रेशन करेंगे आपको धीरे धीरे वैसे समझ में आता जाएगा कि ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स द टोटल इनकम ऑफ द मिस्टर मयंक डिटरमाइन द टोटल ग्रॉस इनकम रेफरेंस टू डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस। यानी कि तीनों के तीनों रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर मिस्टर मयंक है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसे टैक्सेबल होगी। जैसे कि 3 चीज़ें दी गई हुई है। सैलरी टैक्सेबल 7,20,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ द ए लिमिटेड 48,000, income received during the previous year in Bangladesh brought to in India in the same year 8 lakh, income from the business in Burma, business control and managed in India 9 lakh rupees। ठीक है, चलो समझते हैं। हमने ऐसे बॉक्स बना लिया है कौन कौन से। अगर रेसिडेंट होगा मिस्टर मयंक तो उसे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो इस कॉलम में जो टोटल आएगा वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और मिस्टर मयंक नॉन रेसिडेंट होगा तो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 3 डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कौन सी सिचुएशन में मिस्टर मयंक कितना टैक्स पे करेंगे वो हमें देखना है। फर्स्ट है सैलरी। सैलरी दैट मीन्स Mr. Mayank is somewhere as an employee business. He is an employee in the sum of the
organization and he received the salary 7,20,000 in a bracket. It's clearly mentioned that is a taxable. That is a taxable salary that is received in India. So वो इंडियन इनकम हुई. अगर इंडियन इनकम है तो तीनों को टैक्सेबल होगी. सो सैलरी टैक्सेबल कितनी है? 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000. क्योंकि वो इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है तो वो तीनों को टैक्सेबल होगी. देन सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ A Limited. Interest on a debenture of the A Limited. That means he receive a debenture interest on A Limited, and we have no clarification that A Limited situated in India or outside India. So we suppose that is that he received a interest of the A Limited that is situated in India. So he receiving the Indian income. तो ये भी इंडियन इनकम हुई. इंडियन इनकम होगी तो वो तीनों को टैक्सेबल होगी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ ए लिमिटेड 48,000, 48,000, 48,000. Now third point, income received during the year in Bangladesh. बांग्लादेश दैट मीन्स आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है तो वो फॉरेन इनकम हो गई. ब्रॉट टू इन इंडिया इन द सेम ईयर 8 लाख रुपीज़. वो 8 लाख रुपीज़ इंडिया में ब्रॉट आउट कर रहा है 8 लाख रुपीज़, बट वो फॉरेन इनकम है क्योंकि वो बिजनेस कहाँ पे है, वो इनकम रिसीव कहाँ से की है? बांग्लादेश में. दैट मीन्स इट्स आउटसाइड इंडिया, दैट नोन एज अ फॉरेन इनकम. अगर फॉरेन इनकम होगी तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को तो पे करना ही पड़ेगा. इन दोनों को नहीं पे करना पड़ेगा. अगर ये सिचुएशन होगी तो इसे भी पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो एनआरआई तो पे नहीं करेगा, तो एनआरआई में हम नील लिख देंगे. यहाँ पे लिखेंगे इनकम रिसीव्ड फ्रॉम बांग्लादेश. सो इसको तो पे करना ही पड़ेगा. और यहाँ पे कंट्रोल और मैनेजमेंट इन द इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा ये वाली इनकम पे. नाउ फोर्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम द बिजनेस इन बर्मा. बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेज इन इंडिया 9 लाख रुपीज़. अगेन ये भी फॉरेन इनकम हुई क्योंकि वो बिजनेस कहाँ पे है? बर्मा में है. दैट मीन्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दैट इज नोन एज अ फॉरेन इनकम. फॉरेन इनकम होगी तो रेसिडेंट को तो पे करना ही पड़ेगा. समझ में आया? रेसिडेंट को तो सब इनकम पे करनी ही पड़ेगी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम बर्मा ₹9 लाख. इसे किस कंडीशन पे होगी? बिजनेस मैनेज एंड कंट्रोल इन इंडिया. और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेज इन इंडिया. तो वो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है तो भी उसको ये इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा. और एनआरआई टैक्स पे नहीं करेगा क्योंकि वो फॉरेन इनकम है और वो नॉन रेसिडेंट है, तो उसे इनकम पे टैक्स पे नहीं करेगा. टोटल हम करेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का टोटल हो गया 24,68,000. रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का हो गया 16,68,000 एंड द एनआरआई का हो गया 7,68,000. तो ऐसे इस वजह से हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं कि उसको टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा. आप ऐसे ही देख सकते हो कि इनकम में कितना डिफरेंस आ रहा है. तो ये ज़्यादा टैक्स पे करेगा क्योंकि वो इंडिया में ही रह रहा है, इंडियन इकोनॉमी में डील कर रहा है और वो इनकम रिसीव कर रहा है, चाहे वो इंडियन इनकम हो या चाहे फॉरेन इनकम, उसे सभी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा. अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है तो वो सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स पे करेगा और फॉरेन इनकम पे वही चीज़ों में बिजनेस में अगर होगा, जैसे मैनेज एंड कंट्रोल इन इंडिया होगा तो ही वो टैक्स पे करेगा.
और एनआरआई होगा वो फॉरेन इनकम पे बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करेगा, सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स पे करेगा।